Hi everyone, myself Anirban, welcoming all of you to beta classes. So this is your lecture number 3 of vector, and in this lecture we are going to learn about components of vector. Okay, तो देखो ये components of vector क्या होता है कि मान लो कि ये एक ग्राफ है जहाँ ये है x axis, it is your x axis and this is your y axis, all of you know very well, and this is the vector A and this is making an angle of theta with respect to x-axis. So if you want to break this vector A along x-axis and y-axis, that means you want to create components of a vector which is which is A. So it will be your A. अब देखो थीटा जिस साइड के साथ बाजू में है, मतलब x के साथ ही ये थीटा है, तो इट विल बी a cos थीटा. ओके, a cos theta along the x axis and along the y axis it will be a sin theta. ओके, थीटा x के साथ है, देख सकते हो थीटा x के साथ है, तो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा a cos theta and through y axis it will be your a sin theta. मान लो कि अगर ग्राफ ऐसा आया कि ये है तुम्हारा वेक्टर b and this is your y axis and this is your x axis and now theta is with the y axis. So after breaking this vector b, it will be your b sin theta and b cos theta. मतलब थीटा y के साथ में है तो जिस साइड के साथ में है वहां पर हो जाएगा cos. देखो y के साथ है तो यहाँ पर आ गया क्या cos, और x के साथ है तो यहाँ क्या आ गया तुम्हारा sin. So ये it will be your b sin theta and b cos theta. Okay, so this is your components of vector. देखो दोनों कंपोनेंट में ये a वेक्टर डिवाइड हो गया, ये b वेक्टर दोनों कंपोनेंट में डिवाइड हो गया. So after this is your 2D representation. Let it be a 3D representation. Suppose this is your x-axis and this is your y-axis and here is your z-axis, and a vector A is here as it is making an angle alpha with respect to x-axis and angle beta with respect to y-axis and an angle gamma with respect to z axis. ये जो a वेक्टर है ये x के साथ अल्फा एंगल, y के साथ बीटा एंगल एंड z एक्सिस के साथ गामा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है. तो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू कोसाइन वैल्यूज. ओके, यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्वेश्चन लिया है, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर दिस. सो मान लो कि ये जो वेक्टर है वो है ये वेक्टर ए वाला वेक्टर, वो है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप. ओके, एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर. सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस. ओके, सो 3 फॉर्मूला याद रखना कि cos of alpha, cos of beta and cos of gamma. Cos of alpha, cos of beta and cos of gamma. So it will be your ये है a वाला वेक्टर, so it will be ax by mod a. That means mod a is your magnitude of the vector. Okay, and ax is the component of a vector along the x-axis. Okay, cos beta will be a, okay, ay divided by mod of a, and cos of gamma will be your a z divided by mod a. So ax मतलब a का जो कंपोनेंट x एक्सिस में गया डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a. cos of beta will be your a का जो कंपोनेंट y एक्सिस में गया डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, and cos of gamma is your a का जो वेक्टर z एक्सिस में गया मतलब यहाँ पर आया वो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ a. सो
I am doing this question at first, question number 4, to make it more clear. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि find magnitude and direction cosines of the vector A equal to, so A equal to your 3 I cap minus 4 j cap plus 5 k cap. Okay, fine. So यह है your x axis, okay, this is your y axis and this is your z axis. Okay, x axis, y axis, z axis. So assume that vector A is your this vector A, which is your 3 I cap minus 4 j cap plus 5 k cap. Okay, and it is making an angle alpha with respect to x axis, beta with respect to y axis, and an angle gamma with respect to z axis. So here is the question is find magnitude and डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस, मैं डायरेक्शन कोसाइंस में बाद में आ रहा हूँ, पहले मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बोलता हूँ कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए. सो दिस इज योर ए वेक्टर एंड यू हैव टू कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, मैग्नीट्यूड. सो हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड? इसका जो फॉर्मूला है वो है रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. नाउ तुम लोग जानते हो कि ए एक्स ए वाई एंड ए जेड क्या होता है. एक्स होता है ए का जो वेक्टर ए है उसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट, ए वाई होता है वाई एक्सिस में कंपोनेंट एंड जेड एक्सिस में कंपोनेंट को बोलता है क्या, ए जेड. सो अब देखो मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो होगा क्या, रूट अंडर ए एक्स. सो ए एक्स आई कैप इज योर x direction, j cap is your y direction and k cap is your along the z direction. So it will be 3 square plus minus 4 square plus 5 whole square. So after calculating it, it will be 3 का स्क्वायर 9 minus 4 का स्क्वायर means minus 4 into minus 4, so it will be your 16 and 5 square 25. सो कितना आया, 16 और 9 25 और 25 50 50. सो रूट अंडर 50, रूट अंडर 50 इज योर मैग्नीट्यूड. ओके, रूट अंडर 50 इज योर मैग्नीट्यूड. सो द मैग्नीट्यूड इज रूट अंडर 50. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइन. सो डायरेक्शन कोसाइन मीन्स क्या था कि ए कॉस cos of alpha. Cos of alpha, so cos of alpha equal to a x divided by mod of a. Okay, so ax. Now the ax is the component along the x axis, so it is your 3 divided by mod of a. Mod of is your root 50. अब रूट 50 को कैलकुलेट तुम लोग कर सकते हो, मैं और नहीं जा रहा है, और यही आंसर है. अब देखो cos of beta, so a of y divided by mod a, and it will be your ay means your minus 4, so minus 4 divided by root 50. Okay, and cos of gamma is your az divided by mod of a, and it will be your कितना था 5, so 5 divided by root 50. Okay, 5 divided by root under 50. So this is your direction cosines of cos alpha, cos beta and cos gamma. Okay, so question number 4 is done. So direction cosines of the vector. Okay, this is your answer. Next, अब मैं कुछ सवाल में जा रहा हूँ. अगर तुम लोगों को आता है तो वीडियो को पॉज करना और आंसर करना, फिर चेक कर लेना.
So question number 1 is your a force F has magnitude of 15 Newton. Direction of F is at 37 degree from negative x-axis. Now what is negative x-axis? You know that this is your positive x-axis. Okay, this is your negative x-axis. Okay, this is your positive y-axis and this is your negative y-axis. Okay, positive x-axis, negative x-axis, and positive y-axis, negative y-axis. So the question says that a force F has magnitude of 15 Newton. Fine. Direction of F is at 37 degree from negative x-axis towards positive y-axis. That means suppose this is the force F and it is making an angle. Direction of F is at 37 degree from negative x-axis. Negative x-axis के साथ 37 डिग्री एंगल कर रहा है थ्रू द पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो ये वाला डायग्राम होगा. तो क्या बोला है कि टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस. फाइन. रिप्रेजेंट F इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप. सो इस फोर्स को आई कैप और जे कैप में हमको रिप्रेजेंट करना है और ये जो फोर्स है वो है 15 न्यूटन, ये बोला गया है. ओके, सो अब देखो ये जो एक्स एक्सिस है इसके साथ ही ये थीटा एंगल है. तो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो आएगा 15 ओके इंटू कॉस या साइन. मैंने क्या बोला था कि जिस साइड के साथ एंगल है वहां क्या आता है? कॉस आता है. सो इट विल बी योर कॉस ऑफ 37 डिग्री. ओके, एंड थ्रू द वाई एक्सिस इट विल बी योर 15 साइन. ओके, साइन 37 डिग्री. ओके, so it will be your 15 cos 37 degree and it will be your 15 sin 37 degree. Okay, so मैंने त्रिकोणमिति जो लेक्चर है वहां पर क्या बोला है कि एक ट्रायंगल होता है वेरी फेमस ट्रायंगल विच इज योर 5 3 and 4. ये ट्रायंगल होता है और ये थीटा एंगल. सो ये थीटा का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये यहाँ पर है 3, सो इट इज स्मॉलर साइड. So the angle will be smaller, 37. Okay, so here is the angle 37. So 37 के opposite में जो side है उसका value होगा 3. So यहाँ पर क्या value आता है कि 15 into cos of 37. That means नीचे तो 5 ही होगा और cos means base divided by hypotenuse. So base is your 4. So it will be your 3 12. Okay, 12. So it is your 12 and another is your 15 into 3 by 5 9. Okay, so this is your 9 and this is your 12. 9 and 12. So here is the question is represent F in terms of I cap and J cap. So I cap and J cap में represent करना पड़ेगा. तो क्या आएगा कि F जो वेक्टर है और जो फोर्स है वो x एक्सिस. सो ये अगर पॉजिटिव आई कैप है तो ये नेगेटिव आई कैप हो जाएगा. ये अगर पॉजिटिव जे कैप है तो ये हो जाएगा नेगेटिव जे कैप. ओके, सो F इज योर 12 वैल्यू है और डायरेक्शन क्या है? दिस साइड माइनस आई कैप. सो माइनस आई कैप प्लस ऊपर की साइड जे कैप प्लस जे कैप और वैल्यू है 9. सो 9 जे कैप. ओके, सो दिस इज योर आंसर. स्क्रीनशॉट ले लो. अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 में. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए which is given as 6 i cap minus 8 j cap. Find magnitude and direction. दोनों क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो मैग्नीट्यूड क्या है? वेरी सिंपल, ए वेक्टर दैट इक्वल टू 6 i cap minus 8 j cap. ओके, सो मैंने क्या फॉर्मूला बताया कि ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर उसका होल रूट. सो यहाँ पर x ay az क्या होता है? मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि ax होता है ए का जो वेक्टर है उसका x एक्सिस में कंपोनेंट, ay होता है y एक्सिस में कंपोनेंट और az होता है z एक्सिस में कंपोनेंट. सो फिलहाल
इस वक्त z तुम्हारा कुछ नहीं है, k कैप तो है नहीं, कुछ नहीं है, तो i कैप और j कैप मीन्स तुम्हारा x एंड y ही है. सो it will be your 6 square and minus 8 square. So 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64. So it will be your 6 और 4 0 1 9 और 10 100 और 10. So magnitude is your 10. Okay, so magnitude is done. Find the magnitude. Magnitude is your 10. And the question and the rest of the question is direction. So direction means, अब देखो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सपोज ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, मैं 2D में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड दिस इज योर नेगेटिव y एक्सिस एंड दिस इज योर नेगेटिव x एक्सिस. So 6 I cap means पॉजिटिव में, पॉजिटिव x एक्सिस में 6 यूनिट. ओके, 6 यूनिट मान लो कि ये 6 है, और नेगेटिव y एक्सिस में 8 यूनिट. ओके, नेगेटिव y एक्सिस में 8 यूनिट. सो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कहीं पर 8 है. ओके, सो अगर ऐसे ज्वाइन करते हो तो ये वाला पॉइंट आता है. सो मान लो कि ये तुम्हारा वेक्टर है. तो द क्वेश्चन इज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. सो डायरेक्शन मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल tan की रेस्पेक्ट में. मतलब यहाँ पर अच्छे है. सो tan ऑफ थीटा, इफ यू कैलकुलेट tan ऑफ थीटा देन इट विल बी 6. ओके, अब देखो ये है तुम्हारा क्या है 6, ये जो 6 है भाई ये 6 है, और ये है तुम्हारा 8, तो पैरेलल लेकर जाते हो तो ये भी 8 है, तो ये भी तुम्हारा 6 है. ओके, और ये 8, ये भी तुम्हारा 8 है, तो ये 6 है, ये है 8. ओके ओके, सो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. सो परपेंडिकुलर इज योर 8 डिवाइडेड बाय बेस इज योर, दिस इज योर बेस, सो 6. ओके, सो 8 by 6. So 8 by 6 equal to 2 4 2 3. Okay, 4 by 3. Okay, so theta is your tan inverse 4 by 3. So the direction is your tan inverse 4 by 3. Screenshot ले लो, यही तुम्हारा आंसर है. Fine. So now we are moving to the question number 3. वो क्या है कि resolve a weight of 10 Newton in two directions which are parallel and perpendicular to a slope inclined at 30 degree to the horizontal. Okay, so at first ये जो मैथ है और जो प्रॉब्लम है, इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुमको डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए. अगर डायग्राम ठीक से ड्रॉ किया तो क्वेश्चन समझो हो जाएगा. देखो क्या बोला गया कि रिजॉल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन in two directions which are parallel and perpendicular to a slope. मतलब एक स्लोप को ड्रॉ करना चाहिए, तो एक स्लोप ड्रॉ करते हैं, एक स्लोप, और वो स्लोप इंक्लाइन है 30 डिग्री एंगल में टू द हॉरिजॉन्टल, अर्थात हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ. तो ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल है, वो है क्या 30 डिग्री. ओके, तो यह है तुम्हारा स्लोप, और इस स्लोप के ऊपर में एक मास है, एक डिब्बा है, जो मान लो तुम लोग कि रिजॉल्व है वेट ऑफ 10 न्यूटन, वो है तुम्हारा 10 न्यूटन. सो धरती माँ इसको 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, 10 न्यूटन से. एंड आफ्टर दिस यू हैव टू measure all the angles at first. So this is your 30 degree and you know that this is your 90 degree. So this angle must be your 60 degree. Okay, अब गौर से देखो कि यहाँ पर है 60, और ये जो टोटल एंगल है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है
इस वाले साइड स्लोप के साथ, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ ना, तो ये वाला एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, एंड this part of this angle is your 60 degree, so the remaining part of this will be your 30 degree. Okay, basic geometry. So now the question is, you have to break this 10 Newton in two directions, which is parallel and perpendicular to a slope incline, which is inclined at 30 degree to the horizontal. Okay, fine. So this is your 10 Newton, this force is your 10 Newton, this force is your 10 Newton. Okay, so ये 10 न्यूटन के बाजू में ये है परपेंडिकुलर, so this will be your 10 cos 30. Why cos 30? Because it is adjacent to this side, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है इसके साथ ही देखो अटैच्ड है 30 डिग्री, so इसीलिए आएगा क्या cos, और इसके जो दूर वाले साइड है मतलब यहाँ पर यहाँ पर क्या आएगा साइन. ओके, सो दिस इज योर 10 न्यूटन, सो 10 साइन 30 डिग्री, सो 10 साइन 30 का क्या वैल्यू आता है, साइन 30 इज योर हाफ, सो 5 न्यूटन. ओके, एंड हियर इट विल बी योर 10 cos 30, sin 30 is your half and cos 30 will be your root 3 by 2. So root 3 by 2, 5 root 3 Newton, and this is your 5 Newton. 5. So 5 Newton and 5 root 3 Newton. So पूछा क्या गया था कि resolve a weight of 10 Newton in two directions which are parallel and perpendicular to a slope which are angle 30 degree to the horizontal. Okay, so this 10 Newton, इसको हम अगर रिजॉल्व करते हैं एंगल्स में तो हम लिख सकते हैं कि 5 न्यूटन दिस डायरेक्शन में और 5 रूट 3 न्यूटन दिस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन की ओर. तो देखो ये क्या है, ये और ये क्या है 90 डिग्री, और इसके बीच में है 10 न्यूटन, ओरिजिनल 10 न्यूटन, और इसको हम ब्रेक कर दिया है तो ये आ गया this side 5 root 3 and this side 5. Okay, fine. So question number 3 is done, and last question of today's class, question number 5. Question number 5 is your find magnitude of a minus 2b plus 3c where a equal to this, b equal to this, and c equal to this. Okay, so a minus 2b plus 3c. Okay, so you have to calculate its magnitude. So देखो अब a जो है तुम्हारा वो है 2 i cap plus 3 j cap. Okay, minus 2 of b is your I plus j. Okay, I plus j and plus 3 of c है तुम्हारा k cap. ओके, अब देखो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू तुमको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ सिखा दूंगा कि a है तुम्हारा, देखो कि a है तुम्हारा, अभी चेक कर लो 2i plus 3j. ओके, b is your minus 2, fine, b is your I plus j. ओके, and plus 3 of c is your k cap. ओके, फाइन, इट इज करेक्ट. सो अब देखो पहले तुम यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2i plus 3j ऐसे ही लिख दो, माइनस, अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है 2 के साथ, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में, अगर वेक्टर के साथ कोई स्केलर, ये तो वेक्टर है और ये तो क्या है 2 एक स्केलर नंबर है, अगर वेक्टर के साथ कोई स्केलर अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही होगा, कोई झंझट की बात नहीं है. सो इट विल बी योर माइनस 2i, ओके, प्लस माइनस 2j. ओके, प्लस 3, यहाँ पर भी सेम चीज होगा क्या कि 3 k कैप. अब देखो i कैप, j कैप, k कैप में ये है, और तुमको क्या करना है कि प्लस और माइनस करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है. तो एडिशन सब्सट्रैक्शन के केस में जो i कैप है उसके साथ ही i कैप ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगा, j कैप के साथ j कैप ही होगा और k कैप के साथ k कैप ही होगा. ओके,
ये मत कर देना कि आई कैप के साथ जे कैप घुसा दिया और एक ए कैप के साथ जे कैप ले लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब देखो कि यहाँ पर है 2i, सो 2i के साथ मतलब i के साथ i ही होगा, ढूंढना कहाँ पर कहाँ आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ और नहीं है, तो प्लस और माइनस ये कट गया, ओके कैंसिल आउट हो गया। अब है 3j और प्लस 3j और माइनस 2j। सो अगर 3 माइनस 2 होता है तो क्या करते तुम 1 करते, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ होगा मगर साइन के साथ, मतलब जो डायरेक्शन है आई कैप और जे कैप और के कैप उसके साथ होगा। सो 3 में से अगर 2 गया तो बचा 1 और यहाँ पर j है तो j आ जाएगा, सो इट विल बी योर जे कैप, ओके इट विल बी योर जे कैप। एंड ये हो गया और यहाँ पर प्लस 3 के कैप है, के कैप और कुछ नहीं है और कहीं पर तो और के नहीं है तो ये के ही आ जाएगा, सो प्लस 3 के कैप, ओके प्लस 3 के कैप। सो ये आ गया इस वाले को कैलकुलेट करने के बाद। अब तुमको क्या पूछा है कि द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। सो मैग्नीट्यूड के लिए रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर एंड az स्क्वायर, ओके सो x मतलब आई कैप कुछ नहीं है यहाँ पर, सो इट विल बी 0 प्लस ay है तुम्हारा 1j कुछ नहीं है मतलब ये 1 है तो 1j, सो इट विल बी योर 1 स्क्वायर एंड az is your 3, so it will be your 3 square, so it will be your 0 plus 1 plus 9, okay so 9 or 1 10, root 10, so root 10 is your magnitude of this vector, okay so we have done this 5 questions, so आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ओके गुड बाय।